the first concept that we are going to discuss in today's lecture is that of effective interest rate. Now understand the funda of effective interest rate. Just give me a thumbs up when you know that the screen is getting shared so that I know you can see my screen. Screen is visible to all? Fair enough. Now leave aside what they have written in the formula. Let us understand the concept of this effective interest rate, what is happening. Now see, what has happened is 5,000 has been invested in a term deposit scheme that fetches 6% per annum compounded quarterly. Now understand that it is compounded quarterly and the rate is 6% per annum compounded quarterly. So what will it be? It will be 6 divided by 100 divided by 4 and your answer is 0.015. So effectively this is 0.015 into 100 if you were to do, it is nothing but 1.5% per quarter. What is the rate? The rate is 1.5% per quarter. Now, what is the meaning of compounded quarterly? It means that in the year, interest will be given 4 times. Immediately, you people will have started calculating the future value, which I appreciate. Very good. What will you calculate? You will calculate like this. That is besides the point. I am not interested in that. I am interested in calculating something completely different. Now focus on what I am saying. I am in quarter 1. In quarter 1, 5,000 is invested and you get 1.5%. So how much do you get on 5,000? You get 1.5%. So you get 75 rupees. How much you get? You get 75 rupees. Now understand that while you have gotten 75 rupees as interest for Q1, this interest, it's interest for Q1, this interest will now be reinvested. So now what will happen in Q2? In Q2, you are investing 5,000, which was your principal. It stays invested. It is invested only once. It is invested in a term deposit scheme. So it stays. But now this 75 will get reinvested along with it. Now this 75 will get reinvested along with it. And you will get 1.5% on this. So how much will you get? 5,000 plus 75, which is 5,075 into 1.5%. So now on this, you will get 76.125. Now in Q3, what will happen? This 5,000 stays invested, plus this 75 that was Q1 interest, plus this 76.125 that was Q2 interest. Now this will be reinvested all at the rate of 1.5%. Now how much will you get? Now this plus 75 plus 5,000. So your total investment value is 5,151.125. On that, you are getting 1.5% interest. So now what is the interest you are getting? You are getting 77.266875. So now in Q4, what is the investment position? You are investing 5,000. Then you invest 75. Then you invest 76.125. Then you invest 77.266875. This was Q1 interest. This was Q2 interest. This is Q3 interest. Invested at the rate of 1.5%. So what is the total value investment? Plus 76.125 plus 75 plus of course 5,000 multiplied by 1.5%. So how much you get? Now you will get 78.425878125. I'm purposely taking the full values. What will happen in this? Q4 interest, that is 78.425878125 plus 77.266875 plus 76.125 plus 75. Your interest that you have earned. So what is the total interest earned? The total interest earned is 75 plus 76.125 plus 77.266875 plus 78.428788125 और इसका आंसर है 306.8177533125. ये इतना इंटरेस्ट आपने पूरे साल में कमा लिया और ये इतना इंटरेस्ट आपको कितने पे मिला? ये पूरा इंटरेस्ट आपको मिला है 5,000 पे. तो एक्चुअली आपने कितना ब्याज कमाया डिवाइडेड बाय 5,000%? आपने ब्याज कमाया है 6.13635%. जबकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था?
आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 6% था। लेकिन इफेक्टिवली मतलब एक्चुअली, इन सब्सटेंस, इन रियलिटी, भले 6% हो, भले 6% पर एनम हो, पर इस क्वार्टरली कंपाउंडिंग की वजह से, इस क्वार्टरली कंपाउंडिंग की वजह से, इस क्वार्टरली कंपाउंडिंग की वजह से आपने कितना इंटरेस्ट कमा के दिखाया? 6.136, 6.13635%, विच इज नथिंग बट 6 पॉइंट, यू कैन से 14% आपने कमाया है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 6% पर एनम compounded quarterly is nothing but 6.14% per annum. How much it is? It is 6.14% per annum. आई बात समझ में? तो अगर मैं 5,000 के ऊपर 6.14% कैलकुलेट करता हूँ, कितना कैलकुलेट करता हूँ? 6.14% कैलकुलेट करता हूँ। 5,000 के ऊपर सीधा 6.14% कैलकुलेट करता हूँ, मेरा आंसर आता है 307, which is roughly equal to 306.817, which is because of decimal rounding off, वो कुछ पैसों का आपको डिफरेंस आता है। लेकिन देखा जाए तो 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली इज द सेम एज 6.14 कंपाउंडेड एनुअली। तो ये अगर मैं कहूं कि 6% कंपाउंडेड, 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो दिस इज इक्वल टू 6.14% पर एनम एन्युअली कंपाउंडेड। ये बात समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। Is everybody understanding this concept? Yes or no? Please tell me that. Give me a thumbs up if you have understood it. Give me a thumbs up, all of you who have understood it. Yes or no? Please tell me. Now we have to complicate the calculation a little bit. इसको easy रख के मतलब नहीं बनता है. So do one thing. Please take a screenshot of this. Take a screenshot of this. Take a screenshot of this. Who's taking screenshots? Rishi, are you in the position to take it? सर मैंने ले लिया। ले लिया है? आपका वर्ड पे है ना? हाँ सर। ओके ओके, ले लीजिए, रख दीजिए। ये आ गया है, तो अब मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे सब, अब यहाँ पे ध्यान देंगे सारे, जरा देखिएगा। अब सबका ध्यान यहाँ होगा। लेट्स पे अटेंशन टू दिस। 10,000 is invested in a scheme that provides 12% per annum interest compounded annually. Calculate the effective rate of interest. क्या करना है? You are supposed to calculate the effective rate of interest. अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिए। आपने मंथ नंबर 1 में क्या किया? 10,000 इन्वेस्ट किया, और इस पर आपको 12% पर एनम कंपाउंडेड, कंपाउंडेड एनुअली नहीं, इसको लेंगे कंपाउंडेड मंथली। इसको क्या लेंगे? कंपाउंडेड मंथली लेंगे। कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या है? आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या? हर महीना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मंथ 1 में, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12% है पर एनम। तो ये क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 100। कितने बार इंटरेस्ट मिल रहा है? 12 बार। मतलब एक महीने में कितना इंटरेस्ट हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 0.01। इसका मतलब है यू आर गेटिंग 1% इंटरेस्ट पर मंथ। हर महीना आपको 1% इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हर महीना 1% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये 10,000 पे आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? 1% इंटरेस्ट मिलेगा। सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1%, क्या है आपको? 100 रुपीज। अब ये 100 ये 10,000 में जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10,100।
इस पे आपको मिलेगा 1%, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 101। अब ये 101 इसमें जुड़ जाएगा, तो 10,100 प्लस 101 कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर है 10,201। इस पे आपको मिलेगा 1% इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 102। अब ये 102 इसमें जुड़ जाएगा, 10,201 में क्या जुड़ जाएगा, 102 जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 10,303 इंटू 1%, तो ये कितना हो जाएगा 103। अब ये 103 इसमें जुड़ जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने डेसिमल नहीं लिया, इट इज 102.01, हियर इट इज 103.03, ये डेसिमल्स में इग्नोर कर रहा हूँ। तो एक 10,303 के अंदर, 10,303 के अंदर अब अब क्या ऐड हो जाएगा, अब ये 103 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 10,406। अब ये कितना हो गया 10,406, इसके ऊपर कितना मिला 1%, तो ये कितना हो गया 104.06, तो 104 लिया। अब 10,406 के अंदर 104 ऐड हो गया, अब ये कितना हो गया 10,510। इस पे अब 1%, ये कितना हो गया 105 हो गया। कितने महीने हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। ऐसा करते 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 आप 12 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 12 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे, और ये जो टोटल ब्याज है, ये जो टोटल ब्याज है, आप इसका टोटल इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, ये टोटल इंटरेस्ट आप लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे आप प्रिंसिपल के साथ। आपका प्रिंसिपल तो 10,000 था, इंटू 100, ये क्या मिलेगा आपको, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये क्या मिलेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। यही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए, यही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, 1 प्लस आई इंटू n रेज टू माइनस 1। तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या है यहाँ पे 0.01, तो ये क्या आएगा 1.01 रेज टू व्हाट, 1.01 रेज टू 12 माइनस 1। तो 1.01 रेज टू 12 मतलब इंटू इक्वल टू 11 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 11 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितना है, यह है आपका आंसर 1.1268 माइनस 1, मतलब कितना 0.1268, मतलब क्या 12.68%। अब आप कैलकुलेट कीजिए 10,000 के ऊपर 12.68%, 10,000 के ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए 12.68%, आपका आंसर आएगा 1268। ये टोटल इंटरेस्ट आपने कमाया है, ये टोटल इंटरेस्ट आपने कमाया है। अब ये कितने हो गए 6 महीने। चलो ये सम के लिए थोड़ा पकेगा, पर मैं करवा देता हूँ। चलो देखो अभी 10,510 है, इसमें कितना जुड़ जाएगा 105 जुड़ जाएगा। सो 10,510 प्लस 105 कितना है तुम्हारा टोटल 10,615। इस पे कैलकुलेट करो 1%, डेसिमल राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं तो 106 आएगा। अब 10,615 में 106 ऐड कीजिए, कितना आएगा ये 10,721। इसके ऊपर 1%, डेसिमल राउंड ऑफ कर रहा हूं 107, तो 10,721 में कितना ऐड हो जाएगा 107 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो गया 10,828। इस पे आएगा 1%, तो ये कितना हो जाएगा 108.28, तो 108 ले रहा हूं। कितने महीने हो गए, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां, ये हो गया 9वां। अब 108 को, अब 108 को 10,828 में 108 को ऐड कर दो, कितना आएगा बाबा 1,936। इस पे आएगा 1% इंटरेस्ट, तो ये आएगा 109। ये कितवा महीना है, ये 10वां महीना है। अब ये 109 को 10,936 में ऐड कर दो, कितना आएगा 11,045 इंटू 11%। इसका क्या आएगा आंसर, दिस विल बी 110.45, लेस देन 0.5, तुम्हें राउंड ऑफ कर रहा हूं। ये कितने हो गए 11 मंथ्स हो गए। अब ये 110 को, अब ये 110 को क्या करना है, ये 110 को इसमें ऐड करना है। इनेसियो हाय, यू आर इन द रॉन्ग लेक्चर। इनेसियो हाय, यू आर इन द रॉन्ग लेक्चर। Am I audible, Inesio? Inesio, you have come for a CA foundation lecture. Our CMA lecture starts at 10:30, but you are welcome to stay. Inesio, are you able to hear me? Inesio, are you able to hear me? Inesio.
This is a CA foundation lecture. Your lecture is at 10:30 Indian Standard Time. Right. 11,045 में क्या ऐड हो जाएगा अभी 110. अब ये कितना हो जाएगा 11,155 इंटू 1%. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 111.55. तो इसको मैं लूंगा 112. अब ये सारों का टोटल लीजिए, क्या है टोटल 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105 प्लस 106 प्लस 107 प्लस 108 प्लस 109 प्लस 110 प्लस 112. आपका टोटल कितना है, आपका टोटल इसका आया 1267. कितना आया 1267. इधर मेरा टोटल है 1268. कैसे राउंड ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली. ये जो सारे थे, ये जो सारे थे ये यहाँ पे राउंड ऑफ हो गए, यहाँ पे राउंड ऑफ हो गए और आपका इंटरेस्ट आया 1268. तो हर महीने आपको क्या मिलता गया, हर महीना आपको मिलता गया यू सी 1% इंटरेस्ट. तो इफेक्टिवली नाउ 12% पर एनम compounded monthly is equal to 12.68% per annum compounded annually. 12.68% per annum compounded how much? Annually. ये बात समझना बेहद जरूरी. ये है कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पे अराइव करने के लिए ये आपका फॉर्मूला आपके पास है. ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है. आई बात समझ में? आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट. आई बात समझ में? आई होप यू आर विथ मी ऑन दैट. Yes or no? Please take a screenshot. Please take a screenshot. Please take a screenshot. Screenshot ले लीजिए. Screenshot ले लीजिए. ठीक है. तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं. This is for you to solve. This is for you to solve. The question is 50,000 was invested in a systematic investment plan that gave an interest of 24% per annum compounded quarterly. Full stop. Number 1, calculate effective interest rate. Number 2, calculate the maturity value after 2 years. You have 2 minutes to solve this question. You have 2 minutes to solve this question. Please go ahead. Please go ahead and solve this question. Please go ahead and solve this question. Please go ahead and solve. I'm waiting for your responses. Please go ahead and solve. I'm waiting for your responses. Okay. Now let's understand what is the formula for effective interest rate. Effective interest rate, first of all, takes into consideration your interest. Now what is it? It is 24% per annum compounded quarterly. Quarterly means एक साल में कितने बार interest दिया? 4 times. So 24 divided by 100 divided by 4. What is your answer? 0.06. 0.06 will be applied over here. So how do you apply this? It is 1 plus 0.06. Correct? Effective interest rate compounded quarterly. Now calculate effective interest rate, I'll say for 1 year. For 1 year. So in 1 year, how many compoundings are there? 4 compoundings are there. Minus 1. So 1.06 raised to 4 means into equal to how many times? 3 times. 1, 2, 3. So this will come to 1.26247696 minus 1.
So this is 26.247696%. Now they are asking you calculate the maturity value after 2 years. My dear students, after 2 years means what? After 2 years means future value. So future value is equal to present value into bracket 1 plus r raised to n. Now my dear friends, 50,000 is invested today. So they are asking you what is the value of this 50,000? Effectively invested at the rate of 0.06%. Now it is 2 years. 2 years means how many times I'm compounding? 8 compoundings. It will be raised to 8. So 1.06 into equal to 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. It will be 1.5938. Multiply straight away by 50,000. Your answer will come to 76,692.4037. So what is this? This is what you will get if 50,000 is invested at one shot, at the rate 24% per annum, compounded quarterly for 2 years. Compounded quarterly for how long? Compounded quarterly for 2 years. I hope you're with me on that. I hope everybody has understood this. 26.24 is the right answer. Very good. 11. सर वहाँ पे 7-9 आ रहा है मेरा. हाँ सर. Yes, sir. 7-9 सर आ मेरा भी 7-9 ही आ रहा है. 7969 2.40. Is this correct? हाँ मुझे भी वही आ रहा है. मैंने क्यों लिखा 7? That is the answer I got. 79692. Right? That is the answer I got. I'm sorry, it is 79692. 79692. I wrote it wrong on the screen. I'm sorry. Right, 79692. Everybody understands this? Yes or no? Yes, sir. Okay. Screenshot, please. Screenshot, please. Done, sir. Done? Okay. Now, let's come back to your study material. Let's come back to your study material. The study material has to be thoroughly, you have to solve it thoroughly. A focus. What are they saying? They are saying find the amount of compound interest and effective rate of interest. They are saying find the amount of compound interest and effective rate of interest if an amount of 2,000 is deposited in a bank for 1 year at a rate of 8% per annum, compounded semi-annually. Compounded what? Semi-annually. So we are looking at 8%. Compounded semi-annually means 2 times. So we are looking at 0.08. We are looking at 0.08 divided by 2. Our answer is 0.04. Our answer is 0.04. Now, first of all, they are saying what? Calculate compound interest and calculate effective interest rate. First, let's do what is simple. Effective interest rate. What is the formula for effective interest rate? It is 1 plus r raised to n minus 1. Now, n is the number of times compounded. So, if it is compounded semi-annually, it means it is compounded 2 times. Now, the best thing that you can do actually is these annotations that I am making over here, you make them in your study material only. You make them in your study material. Your study material will be a complete explanation. So what will this be? This will be 1 plus 0.04 raised to n. N is 2 times minus 1. So what is this? This is 1.04 into equal to, that is 1.0816 minus 1. So we are looking at 0.0816, which is nothing but 8.16%. This is 8.16%. Do not make the mistake of writing per annum over here. No, this is 8.16% per semi-annum. That is per 6 months. That is per 6 months.
You need to be very careful about this. This is 8.16%. That is per 6 months. This right here is very, very important. So far, what is it that I have calculated? So far, I have calculated effective interest rate. Now to calculate compound interest. Compound interest is equal to what? Principal into bracket 1 plus r raised to n minus 1. Now see, understand. All I have to do is, I already have this calculated over here. This bracket is ready over here. So what I have to do? I have to just multiply that by my principal. My principal is 20,000. I'll multiply this by 0.0816. So that is nothing but 8.16% of 20,000 multiplied by 8.16 percentage. My answer is 1632. What is my answer? 1632. What is my compound interest? My compound interest is 1632. And my effective rate of interest is 8.16%. What is the meaning of this? The meaning of this is 8% per annum compounded semi-annually is equal to 8.16 percentage is equal to 8.16 percentage per annum compounded annually. How? In the year, how much interest have I earned? I earned 1632 rupees interest on an investment of 20,000. So 1632 divided by 20,000. What is the answer? It is 0.0816, which is nothing but 8.16 percentage. What is the answer? It is 8.16 percentage. I hope you understood this concept clearly and carefully. I hope you understood this concept clearly and carefully. Please take a screenshot of this. Please take a screenshot of this. Done, sir. Clearing this, going to another screen to give you an extra problem now. Okay, now let's take a look at your extra problem. The first one, 25,000 has been invested in an SIP which yields 18% per annum interest compounded quarterly, comma, what is A, effective interest rate, B, compound interest. Second, 30,000 has been invested. 30,000 has been invested in an SIP which yields 24% per annum interest compounded monthly. What is A, effective interest rate, and B, compound interest? These are the two questions that I am making you to do. You have 2 minutes. You have 2 minutes. Please calculate and give me the answer. You have 2 minutes. Please calculate and give me the answer. Sir, Yeah. sir, what is the number of years? Oh, I'm so sorry. Two years and 3 years and 2 years respectively. Monthly is the second one, quarterly is the first one.
So let's begin. 25,000 has been invested in an SIP yielding 18% per annum compounded quarterly. 18% compounded quarterly means in 1 year you are doing 4 times interest. So 18 divided by 100 divided by 4. Your answer is 0.045, which is nothing but 4.5% per quarter. Now effective interest rate is equal to 1 plus r raised to n minus 1, which is 1 plus 0.045 raised to n. Raised to n means the number of times compounding. In 1 year, you are compounding 4 times. So in 3 years, you are compounding how many times? 12 times. Means raised to 12 minus 1. Raised to 12 means into equal to how many times? 11 times. So 1.045 into equal to 11 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minus 1. It gives you what? What did you get? Come on, guys, tell me. 1.045 into equal to how many times? 11 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minus 1. What did you get? You got 0.69588. Correct? Yes or no? Is that what you got? Yes, sir. Yes, sir. What is the meaning of this? This is approximately 70%. What is this approximately? 70%. My God, 70%. That's a crazy interest rate. That's a crazy interest rate. Let's check out. Ideally, it should be close. Now let's check out. Ideally, ko goli maro. Let's see this. Compound interest is equal to principal into bracket 1 plus r raised to n minus 1. 1 plus r into 1 plus r raised to n minus 1. I already know the answer, which will be 25,000 multiplied by 0.69588 percentage. Right? So multiplied by 25,000, it will fetch me 17,397.0358. It will fetch me this much total compound interest. My dear friends, I'm going to earn this much compound interest. 17,397 on an investment of how much? On an investment of 25,000. Now this is the total interest over 3 years. Correct? So this divided by 25,000 percentage, it is 69.58. This is 70% over what span? Over a 3-year span. So how much in a year divided by 3? Your answer is 23.196% per annum. So it is as good as saying that 18% per annum compounded quarterly is as good as 23.196% compounded what? Annually. तो जो पैसा आपको 18% कंपाउंडिंग करके 3 साल में मिलेगा, उतना ही पैसा आपको 23% कंपाउंडिंग करके 1 साल में मिलेगा. So it is as good as saying that compound interest at the rate of 18% per annum compounded annually is equal to simple interest at the rate of 23.196% per annum for this, correct? Compounded annually, this for 1 year. Are you understanding what I'm trying to say? Now, Yes, sir. I'll do the second one, but now this particular concept. Who has not understood this, please raise your hands. This box is most important. Your next concept is based on this box. Karan, understood or not understood? सर मेरा 19.25 आ रहा है इफेक्टिव रेट का. सर उसमें आपने जो निकाला है उसका पावर n, उसमें 12 नहीं आएगा, 4 ही आएगा ना, क्योंकि Oh yes, it is compounded quarterly, na? Quarterly for it is compounded quarterly. Yes, it will be raised to 4. Correct? यस सर. तो उससे करेंगे तो 19.25 आ रहा है. Yes, yes. No, but it has to be raised to 12. No. It has to be raised to 12, na? It is 3 years. Yes, sir. It raised to 3 years. वो तो If सर अगर ये 1 उसका साल होता तो 12 आपका इयर्स का आंसर लॉजिक समझाइए ना. Sorry?
वो 12 इयर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि लाइक 4 इयर्स आना चाहिए ना। 4 इयर्स नहीं है वो, 4 कंपाउंडिंग है। एक साल में कितने बार कंपाउंडिंग किया? 4 बार। क्वार्टर लिया ना, एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, तो एक साल में 4 बार इंटरेस्ट देंगे, तो 3 साल में कितने बार इंटरेस्ट देंगे? 12 दफा इंटरेस्ट देंगे। आई बात समझ में? पर सर इसके पहले वाले सब में तो ऐसा नहीं किया है। इसके पहले वाले सब में 1 ईयर के लिए था ना। जो 50,000 वाला सम था उसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली था, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस टू 4 ही लिखा है हम लोग ने। हाँ सर। मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, करेक्ट? पढ़ना भी दे दो। करेक्ट, 0.02। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आएगा? Sir, it's 0.02. सर 2 इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा इसका 8.24% पर एनम। सो 8% पर एनम कंपाउंडेड annually is equal to 8.24% per annum। ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, सॉरी, 8.24% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आ रही है बात समझ में? इसमें मेरे मेरे एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक है, इन द सेंस कि मेरा एक्सप्लेनेशन का क्वालिटी बहुत पुअर है आज। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं गलत हूँ इसमें, तो इसमें सर आपको नहीं सर, आपने बराबर किया था। वो 8% में ना आपने 18% लिख दिया था। 18% इसलिए रॉन्ग होगा। जोर से बोलना, क्या इफेक्टिव प्रॉब्लम? रेट ऑफ इंटरेस्ट खाली 1 ईयर के लिए निकलेगा और जो कंपाउंड हाँ, इंटरेस्ट होगा वो 3 साल वो 3 साल के लिए निकले। हाँ बराबर। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने उसके अंदर 3 साल के निकाले थे, फिर 70% आया था। मतलब ओवर अ 3 ईयर पीरियड तुम 70% कमा रहे हो ना बेसिकली। अगर उसके अंदर इफेक्टिव रेट ऑफ हाँ। इंटरेस्ट 3 ईयर का निकालेंगे तो सर तो सही है ना वो? वो भी सही है, लेकिन सही है ना? 1 ईयर के लिए निकालेंगे हाँ, तो 1 ईयर के लिए निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 19% 19% आएगा। बट 3 साल के लिए निकालेंगे तो 70% आएगा। हाँ, सही है, सही है। मतलब इफेक्टिवली 3 साल में तुमने कितना कमाया? 70% कमाया ना। दैट्स द लॉजिक। Yeah. ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपको एक सवाल पूछता हूँ। योर ऑप्शन नंबर 1 इज इन्वेस्ट 3% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली और 3.6% पर एनम compounded annually. Compounded annually is as good as simple interest और compounded quarterly is nothing but compound interest. ठीक है? Versus what is better for you as an investor? 3% compounded quarterly, आपको क्या effective interest rate आएगा इसमें? Effective interest rate इसमें आएगा 3 divided by 100 divided by 4, which is equal to 0.03 divided by 4, it is 0.0075. So 1 plus 0.0075 raised to quarterly means in 1 year how much compounding? 4 minus 1 plus 1 into 1, 2, 3 minus 1. What is your answer? Into 100. Your answer comes to 3.0339%. So I will say it is 3.034% per annum. Abhi what is better? 3.034% per annum is better or 3.6% per annum is better? Obviously this is better.
So will you go for 3% per annum compounded quarterly or 3.6% per annum compounded annually? You'll go for 3.6% per annum compounded annually. और ये सारी चीजें आप क्यों मैथ्स पे कर रहे हो? क्योंकि आगे जाके जब आप सीए बनोगे और आप बैंक्स के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज लोन्स डिजाइन करोगे बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री, ये सारे चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए इंटरेस्ट को आपके ऑफर करोगे. आई बात समझ में? यस और नो? आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? Sure. Are you with me on that? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Take a screenshot. Take a screenshot. Done, sir. Now, let's go for one more example in this. Vishaka, what was your question number Question number 9. in exercise number? 4B, I think. 4A, 4A. Exercise 4A. Question number 9. That's a doubt she has asked. So now let's take up doubt questions. Whoever has been solving the study material on their own will probably have doubts. So question number 9. This is your doubt? Yes. This is your doubt. A sum of money amounts to 6,200 in 2 years. Amounts. And 7,400 in 3 years. Have they given you what kind of interest we are talking about? No. What will you assume it to be? Simple interest. So it amounts to. Amount is equal to what? Principal into bracket 1 plus Rn upon 100. In the first case, what is happening? A sum of money amounts to 6,200 in 2 years. In 2 years. So you are looking at 2R upon 100, right? This is your first equation. Now solve this equation. 6,200 is equal to P into bracket is equal to P into bracket. Now 1 plus 2R upon 100. So this is as good as saying 100 plus 2R upon what? 100. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Right? Now, second one, amount is equal to P into bracket 1 plus NR upon 100. So what is your amount? It is 7,400 in 3 years. 1 plus 3 into R upon 100. What will this be? This is equal to P into bracket 100 plus 3R upon 100. Now these two equations, you have to simplify them further and solve them simultaneously. What will you do? You solve these equations simultaneously. I am not solving them right now. Why? Because I'd like you to apply your mind to it. What is the worst thing that will happen? You will not be able to solve it. Doesn't matter. I'll solve it for you tomorrow. But this much you can do the calculation after this, correct? Correct? Are you with me on that? So I got these two equations, but I couldn't solve it further. I'm sorry. I got these two equations, but I couldn't solve it further. Now you have to learn how to do simultaneous equations. Rack your brains on it for a day or for about 15 minutes. If you can't, then it's okay. You need to simplify these things further. Please understand, what will this become? 6,200 is equal to 100p plus 2pr. Upon what? Upon 100. Take 100 over there now. So this is 6 is equal to 100p plus 2pr. Got it? And this will become what? This in the same light will be 7,400
is equal to 100p plus 3pr. Got it? And this 100 is here. So this 100 will go there. So this will become what? 7400 is equal to 100p plus 3pr. Got it? So what are you equating now simultaneously? From this 7,40,000 is equal to 100p plus 3pr. You are subtracting 6,20,000, which is equal to 100p plus 2pr. Got it? The difference between these is how much? I think 1,20,000, correct? So 1,20,000 is equal to PR. What is 1,20,000? Is equal to PR. Got it? Yes or no? Yes. You didn't understand? I understood. I just did a very silly mistake. I understood. That's okay. That's fine. Make as many as you feel like. Don't have to bother about it. 1,20,000 is equal to PR. Now at least you should be able to do it ahead. Yes. How are you in the position to do it ahead? Yes. So do it then. Give us the answer. Do it then. ऑप्शन क्यों चाहिए उसके बगैर बोल. हाँ बराबर है. 3800 is the right answer. Manali gave that answer. Manali, what is your answer, Raja? 3800 and percentage is 31.58%. 31.58%. Option A. Are you getting this, Vishaka? Ahead. Yes, I'm getting it. I've got the answer. Got it? Yes. Fair enough. Can we move ahead? Yes. Now, Manali, you had some doubts. You had sent a photograph. I'm sorry. Tell me the attempt. I'll see it in the book. Which attempt, Manali? Manali? Which attempt? 2006 November attempt. 2006. I don't think I have that. My book starts from 2008. 2006, hai? No worry. Manali, can you post the picture here on Zoom? Yes, sir. Post it. Which one? Both are your doubts? Question 1 and 2 both? Question 1 and Yes, 2 both sir. is your Yes, doubt? sir. Yes, sir. Yes, sir. Chalo, let us take it. Chalo guys, everybody, you have to solve this. Your colleague is asking a doubt. Your colleague is Sir. asking a doubt. Yes. Sir, I'm not able to share the photos on Zoom. Don't worry. I have it in my mobile. 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest. What amount will become 6875 in 3 years? That's the question that she's asking. What amount will become 6875 in 3 years? Now, at the same rate of interest. At same rate. So basically 8,000 becomes 10,000 in 2 years at simple interest. So A is equal to P into bracket 1 plus NR upon 100. So 10,000 is equal to 8,000 into bracket 1 plus 2 into R upon 100. Correct? So take 8,000 on that side. So it is 8,000 in the denominator. So 10,000 divided by 8,000, Monali. What is your answer? 1.25 is equal to 1 plus 2R upon 100. So take 1 on that side now. 0.25 is equal to what? 2R upon 100. Are we clear about this?
Yes or no? Yes, sir. Therefore, Yes, sir. now 0.25. Now take 100 over there. 0.25 multiplied by 100 is equal to what? 25 is equal to 2R. What is R? 12.5% per annum. Now, what amount will become 6875? It has become 6875. This is amount in 3 years n at the same rate. What is the same rate? 12.5. So A is equal to P into bracket 1 plus NR upon 100. So A is how much? What amount will become? This is 6875 is equal to P into bracket 1 plus 0.125, that is 12.5% multiplied by 3. So 0.125 multiplied by 3 plus 1 is equal to 1.375. So this is equal to 1.375 P is equal to 6875. So P is equal to 6875 divided by 1.375. Your answer is 5,000. Right. Your answer 5,000. Understood? Yes, sir. Now the second sum is again your doubt. Yes, sir. Okay. सर Yes. सर जैसे यहाँ पे NR अपॉन 100 है, आपने लिखा 0.125, वहाँ पे डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं क्या 12.5%? भाई साहब 12.5% बराबर है 12.5 डिवाइडेड बाय 100 और 0.125 आर ऑल द सेम थिंग, आर ऑल द सेम थिंग. मैं क्यों लिखता हूँ ये? सीए इंटर में एफएम में इंटरेस्ट रेट्स ऐसे लिखने चाहिए, धड़ाधड़ फास्ट फास्ट आपने लिखने चाहिए, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ. आई बात समझ में? क्लियर गाइस? यस सर. सेकंड डाउट Monali, second doubt. Oh, sorry, Monali. Vishaka, you have not yet solved it, have you? The simultaneous equation. स्क्रीनशॉट ले लिया. I did, I got the answer. Have you solved it? Yes, yes. देखते हैं. Now, we'll come back to your solution. The difference between simple and compound interest. Simple and compound interest का difference. Always keep in mind, it will be CI minus SI. On a certain sum for 3 years at 5%. On a certain sum for 3 years at the rate 5% is how much? 228.75. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है क्लास में? द कंपाउंड इंटरेस्ट. अब पहले आपको इसमें से काफी सारा डेटा मिलेगा, पहले आपको इसमें से काफी सारा डेटा मिलने वाला है, और आगे आपको पूछता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम. अभी इसमें जो आपको पी मिलेगा उस पे 2 साल के लिए 5% डालेंगे तो कितनी कमाएंगे? ढूंढना 2 साल के लिए 5% है. तो सबसे पहले लिए कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 माइनस पी एन आर अपॉन 100 is equal to what? 228.75. So P into bracket 1 plus 5%, 0.05 raised to n. How many years? 3 years. Minus 1. Minus P n. N is how many years? 3 years. R is given to you how much? 5%. 5. Equal to 228.75. ये मैंने सिखा चुका हूँ ऑलरेडी. 1.05 इंटू इक्वल टू 2 टाइम्स 1 2 माइनस 1. कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर है 0.157625 P इज माइनस ये है 0.15 P इज इक्वल टू 228.75 माइनस 0.15. व्हाट इज योर आंसर? Your answer is 0.007625 P is equal to 228.75. 228.75 divided by that much. Your answer for P comes to 30,000. कितना आता है? 30,000. सवाल में आपको क्या पूछा है? सवाल में आपको क्या पूछा है? सवाल में पूछा है उसी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना. अभी इसके ऊपर तुमको क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at the rate 5%. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर ये आएगा आपका. तो P कितना है आपका? 30,000. 1 प्लस आर कितना है? 0.05 रेस टू n. 2 years है ना, रेस टू 2 माइनस 1. सो 1.05 इंटू इक्वल टू माइनस 1 इंटू 30,000. आपका जवाब है
3075 आपके क्वेश्चन में ये ऑप्शन नंबर बी है। यस सर। सम करें, आपके क्वेश्चन में क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। सर सर वो एक और क्वेश्चन है, वो अरे आपको पूछना भेजा है है मैंने। बिंदास। वो आपको एवरेज मैं का फोटो रूल है, भेज सर, उसमें पूरा भरा प्रॉब्लम। तो डाउट पूरा पूछने का, फीस हाँ नहीं भरा तब तक मैं डाउट पूछता रहूंगा जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि तेरे को नहीं आता है, समझा क्या? हाँ सर। डाउट पूछते रहने का बिंदास। हाँ Sir, the question is at 6% interest rate compounded अटेम्प्ट कौन monthly सा बता? attempt जून 2018 का है। जून 2018 है अपने पास, हाँ। है ना? एक- मई 2018 है, वही है ना फिर? जून, हाँ। बोल कौन सा क्वेश्चन? वो at 6% interest rate 83 वाला। 83 की तरह इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़िए। At 6% interest compounded monthly, a person invests 2000 at the end of each month. Find the amount At the end of each month, हाँ, each month. find what? Find amount of annuity after 10th payment. So sir, Inter वो value of अपन annuity regular। हाँ वैसे किया मैंने वो सब, लेकिन मेरा आंसर ना 20548.73 आ रहा है, और उसमें वो आंसर है नहीं, तो Question आंसर है, चेक किया तो question ए देख। ऑप्शन बता रहा है। देख जरा है क्या? एक मिनट रुको, मैं आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ, देख है क्या? मेरे स्कैनर में नहीं। कोई कट टू कट क्वेश्चन ढूंढ के दे देगा। है क्या? मनाली एक मिनट रुक, दे रहा हूँ करके। हाँ सर। दे, अरे देना मियाँ। ये 10% पर एनम हाफ ईयरली नहीं, ये नहीं है। कौन सा है बेटा तेरा क्वेश्चन? सर आपको फोटो भेजू? हाँ बेस्ट, फोटो बेस्ट बेस्ट। ऐसा कैसा है, एक के बुक में है एक के बुक में नहीं है? हाँ हाँ होना चाहिए। तो चाहिए ना। 2006 का भी हो सकता है इसके में। क्या पता नहीं। Half year will be become हाफ at the ईयर end of the 1 year. ऐसा है क्या? 8,000 पता नहीं, वो फोटो भेज रही है। एक मिनट, फोटो आने दे, नहीं भेजा अभी। half year 10%. किधर है? ये हाँ आ रहा है सर, आ रहा है। भेजो, किधर भेजा? ग्रुप पे भेजा? ग्रुप की हाँ, मन कर। नहीं आपको भेजा। अच्छा सवाल तो मिला, ये ले पाओ, ये उसको दे। 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। चल 6% मतलब आधा टका महीना। 6% interest compounded monthly. A person at 6% interest compounded monthly, a person invests 2000 at the end of each month. Find the amount of annuity after the 10th payment. Okay. ये बराबर से ड्राफ्टेड नहीं है। क्यों? अभी अगर मैं बोलूं 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, देखिए याद रखिए इंस्टीट्यूट ने इधर क्या मिस्टेक की है, या तो पब्लिशर ने मिस्टेक की है, दोनों में से एक की मिस्टेक है। ये क्या बोलता है? 6% इंटरेस्ट
कंपाउंडेड मंथली बोलता है, क्या बोलता है, कंपाउंडेड मंथली बोलता है। यदि ये बोलता है 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, इसका मीनिंग क्या हो जाता, इसका मीनिंग ये हो जाता, इसका मीनिंग हो जाता 0.005%, सॉरी 0.005, मतलब ये हो जाता 0.5% पर मंथ। अब ये क्या बोलता है, 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। अभी मैं ये इसका मीनिंग लू कि ये इसका मीनिंग लू डायरेक्टली, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मैं मेरे फिलहाल के कैलकुलेशन में अज्यूम करूंगा 6% इज एवरी मंथ, सीधा सीधा 6% में लूंगा। तो क्या चाहिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी आफ्टर द 10th पेमेंट। 10th पेमेंट मतलब 10वीं एन्युटी के बाद क्या होगी। सो व्हाट इज द आंसर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, कितना डाल रहे हैं हर महीना, 2000 एट द एंड है, मतलब ये क्या है, एन्युटी रेगुलर है। आई बात समझ में, 1 + i रेज टू n -1 अपॉन i, बराबर है मोनाली, Yes, और sir. नो, Yes, sir. 0.06 रेज टू 10 -1 अपॉन 0.06, ये मैं पहला ऐसा करके देखूंगा। 1.06 इंटू इक्वल टू 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 डिवाइड बाय 0.06, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर मेरे को आता है 13.180. मेरा पूर्णांक 180 मल्टीप्लाइड बाय 79494. 2000, मल्टीप्लाइड बाय 2000, क्या है इसका आंसर, 26,361। 26. ये मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूंगा, what do I have left, I have to do this interpretation। आई बात समझ में, I have to do this interpretation, are you with me on that, yes or no। Yes, sir. Yes, sir. 2000 1 plus 0.005 5. raised to 10 minus 1 upon 0.005, 1 plus 0.005 कितना, 1.005 raised to 10 into equal to 9 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 1 divided by 0.005, your answer is 10.228, Yes. 10.228024, इसको करो इंटू 2000, क्या है आंसर, 20,456, क्या 20,456 नाम का ऑप्शन है, इट इज योर ऑप्शन नंबर है, योर सम इज ओवर। हाँ. यहाँ पे आ गया. इन्होंने बहुत ही गलती की है. समझो मेरी बात को, 6% कंपाउंडेड मंथली, यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। 6% कंपाउंडेड मंथली में 6% ही लूंगा ना, अरे बोल ना भाई, 6% पर एनम है, 6% यदि पर एनम होगा तब मैं ये करूंगा ना। मुझे कोई बोलेगा महीने का ब्याज है 6%, मैं मान लूंगा, साल का ब्याज है 72%। कितना ब्याज पे कितना देना चाहिए अमाउंट, ये तय करने वाला मैं कौन हूं, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय जॉब इज टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, अरे बट वो 6% पर एनम है कि पर मंथ है, वो तो बोल, वो बोला नहीं है, तो इसका इंटरप्रिटेशन दोनों निकल सकता है। यदि आप ऐसा करो तो भी आइडियली सही हो आप, क्यों आप सही हो, क्योंकि आपने बराबर वो कैलकुलेशन किया है, आपने बराबर वो कैलकुलेशन किया है फ्यूचर वैल्यू का, लेकिन आपके ऑप्शन में ये है और ये हम लोग ने इधर उड़ा दिया। आई बात समझ में, Yes, sir. आई बात समझ में। सर पर अगर ऐसा एग्जाम में हाँ. आएगा तो क्या होगा, आइडियली मैं दुआ करता हूं कि इंस्टीट्यूट को ऊपर वाला अकल दे और ऐसा ड्राफ्टिंग ना करे। अगर इन्होंने ऐसी ड्राफ्टिंग की पर्पसली, खुदा ना खास्ता और खुदा ने खास दिया तो क्या करोगी, तुम्हें पता है 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली अगर दिया रहेगा तो पुष्कर ने क्या किया था, ऐसा कैलकुलेशन किया था, वो करके आने का, खत्म हो गया। आई बात समझ में, Yes, sir. आई बात समझ में, ओके बोल नेक्स्ट डाउट क्या है। खत्म अभी. सर मैंने भी क्वेश्चन सेंड किया है, भेज बाबा भेज, 1 मिनट रुको।
कहाँ सेंड किए, पोस्ट में क्या? भेजना विश्वा, कहाँ भेजा है? वो भी देंगे सर। ये तो चुप रहे। विश्वा भेज, ये विश्वा। सर लास्ट वाला, अरे पर किधर? विश्वा, I have not got WhatsApp. Have you sent me on WhatsApp? अच्छा ये, अरे राजा ये सम किया ना हम लोग ने, कल ही किया ना? चल देख, एक मिनट, कल ही किया ये सम, क्या कर रहा तू? पर्सन बोरोस 5,000 फॉर 2 years, बोरोइंग कितनी है? 5,000 फॉर 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर्सन का? 4% पर एनम। ये पर एनम मेक्स इट लॉजिकल। और वो लेंडिंग कर रहा है, कितने पे कर रहा है? वही अमाउंट कर रहा है वो लेंड। फॉर हाउ मेनी इयर्स? फॉर 2 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.14% पर एनम, मतलब कितना हो गया? 6.25। विश्वा ये सम कल किया था बेटा। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। अरे इसमें क्या डरने का? तेरा पहले मुझे बता विश्वा, तूने लोन लिया 4% पे और तू उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है 6.25% पे, तो तेरा क्या है गेन? 2.25% पर एनम, बराबर है कितने पे? 5,000 के ऊपर 2 साल के लिए, ठीक है ना? 5,000 के ऊपर 2.25% कैलकुलेट कर, क्या है तेरा आंसर? 5,000 के ऊपर 2.25%, तेरा आंसर क्या आया? 1112.5। ये आंसर इधर खत्म हो गया। सर ऐसा क्यों आपने किया? हो देख अभी इधर 5,000 तूने क्या किया? 2.25% तेरा नेट गेन है, बराबर विश्वा? ये तू बोलेगा 2 साल के लिए, बेटा तू इसको 2 साल के लिए करेगा तो तेरा आंसर क्या आएगा? 225। फिर तू इसको 2 से डिवाइड करेगा, फिर तेरा आंसर आएगा 112.5। उससे अच्छा मैं एक ही बार में कर दूं ना, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मेरे को बस गोला काला करके आने का है। टिक मांगे कि गोला काला करना रहता है? गोला काला करके आने का है तेरे को यार। तो तू क्यों इतना ये करेगा? क्यों इतना तू ये करेगा? देखना तेरा गेन क्या है? 2.25। विश्वा, ए विश्वा, हाँ सर। हाँ तेरा तेरा गेन कितना है विश्वा? 2.25 है, बराबर है? पर एनम है ना गेन बेटा, पर एनम है ना, तो एक एनम में कितना आएगा? हाँ इतना सर। आएगा। तो 2 एनम्स का तेरा गेन कितना है? 225 है, तो एक एनम का गेन कितना है तेरा? 112.5। सिंपल, खत्म हो गया, ये 5 है। समझा? ओके सर। हाँ सर, वो गेन वाला बस लिख लो। मैं समझा नहीं क्या? सर वो गेन वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, गेन वाला? बाकी क्लियर। वो गेन जो निकाले थे ना उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे देख समझ, तूने मेरे से लोन लिया 4% पे और तूने आगे मनाली को लोन दिया 6.25% पे, तेरी कमाई कितनी हुई पर ईयर? कितने पे? हाँ सर, अभी अमाउंट समझ था गया। तेरा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज। इट इज अ टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तू सीखेगा सीए फाइनल में, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम के पेपर में। क्या ये है सीए फाइनल में? अभी there is a reason why this has been taken in foundation. Time value of money is the most important chapter in all of entire CA foundation. It is the basics of financial management of inter and it is the basics of strategic financial management at CA final. It is the most important chapter. चलो, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज हो गया ये विश्वा, समझा? ये विश्वा, हाँ चल सर। अभी मेरे को एक बात बता। You have borrowed 8,000 at the rate of 4% per annum from Samir and have lent 6,000 at the rate of 7.25% per annum to Dheeraj. What is your gain or loss for 3 years? For 3 years. What is your gain or loss per annum? चल करके दिखा टेस्ट। चलो रे सब लोग करके दिखाओ। सर पर अब उधर इक्वल था, इधर इक्वल नहीं है। हाँ, लाइफ इज अनफेयर। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। अप्लाई योर माइंड, कम ऑन।
कुछ नहीं, टुच्चा सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इसमें डरने जैसा, हाँ, पहले बोल रहा हूँ। चल विश्वा कर बेटा। सर वो कितना लिखा है 8,000 एट 4% पर एनम। 4%, फॉर 4% पर एनम, ये 4 है। और वो कितने साल को? 3 साल, ये 3 है। तो चलो, सबसे पहले अपना माइंड यूज करो, सबसे पहले अपना माइंड यूज करो। आपने 8,000 4% पे लिया 3 साल के लिए, तो 8 चौक 32 बरोबर 3 साल, 960 रुपया यू विल पे द इंटरेस्ट। यस और नो, यू टेल मी दैट। अग्रीड और डिसअग्रीड? अग्रीड। और उसमें Yes, से sir. तुमने ये किया, तो यू विल अर्न द इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन व्हाट? 6,000 फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 years। तो यू विल अर्न कितना? 1305 यू विल रिसीव द इंटरेस्ट। पर इन दोनों का ड्यूरेशन कितना है? 3 years। तो इसका डिफरेंस मतलब कमाई कितना किया तूने? 345 किया विश्वा। इन हाउ मेनी इयर्स? 3 years। तो 1 year की कमाई कितनी है? 345 को तोड़ 3 से, कितना आया? 115। समझा विश्वा? विश्वा? प्रिंसिपल रहेगा। हाँ हाँ सर। हाँ, ये पी है ना, ये पी है प्रिंसिपल। ये तेरा गेन है। ये 345 जो बोला ना, वो गलत है। मैंने पूछा क्लियरली, इधर पर एनम है। जिसने भी मेरे को 345 आंसर दिया वो रॉन्ग है। आंसर 115 है। 345 3 साल का आंसर है, मुझे पर एनम चाहिए, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष मुझे 3 साल के लिए नहीं चाहिए। इज अ डिफरेंस बिटवीन 3 years एंड देयर इज अ डिफरेंस ईच ईयर। समझो इस बात को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 8 नंबर गुड, 1 नंबर गुड, 11 गुड, 6 गुड, 8 गुड, मनाली गुड, 17 रॉन्ग, मनाली रॉन्ग, 14 करेक्ट। 14 कौन है? भूमि। हाँ अच्छा, तो है लेक्चर में। गुड भूमि, गुड। 7 रॉन्ग। 7 कौन है? 7 कौन है? पीयूष सर। हाँ, पीयूष। पीयूष। पीयूष गलत। समझा मिस्टेक क्या है? 4 करण परफेक्ट। समझा मिस्टेक क्या है? 18 3। हाँ ठीक है, ठीक है। नाउ कॉपी डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. डन। ओके नाउ सेवन परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 1 second। Compounded quarterly is equal to how much at the rate of simple interest annually?
This question is coming to you from the attempt. This question is coming to you from the attempt November 2018, which seems to be a tough or a rather lengthy attempt because November 2018 is featuring a grand total of 13 questions on this particular chapter. So you understand that the trend for this chapter has changed from the year 2018 onwards. Please understand, and the current trend for this chapter continues at that particular weightage level. I hope you're with me on that, ladies and gentlemen. I hope you're with me on that. Now, 7% per annum compounded quarterly. What is your answer? 0.0175. So what is effective interest rate? Is equal to what? 1 plus r raised to n minus 1. 1 plus 0.0175 minus 1. Minus 1. Your answer is 0.07185903128. Straight away multiply by 100. It is 7.1859%. This is your answer. What does it mean? It means that 7% per annum compounded quarterly is equal to 7.1859% per annum under simple interest. Under what? Simple interest. Has everybody got this answer? Has everybody got this answer? Perfect. 17. Very good. 0.01175 is half baked, my dear girl. Komal. Komal understood the mistake? Komal. सर वो स्टार्टिंग के लिए आंसर मैंने बताया था. नहीं मतलब आपका आंसर ये आया कि नहीं, ये वाला यस सर आया. आया ना? शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड. ये आया तो नो टेंशन. चलो. Let us come to June 2019. Let us come to June 2019. A certain sum becomes 692 in 2 years. अच्छा, कल डबल लेक्चर है. कल आपका ब्लड रिलेशन हो जाएगा. कल मेरे कोई मॉर्निंग लेक्चर्स नहीं है. कल मेरा कुछ भी नहीं है. कल मैं एपेक्स ही एपेक्स हूँ. आई बात समझ में? कल सुबह से जो चालू करा दूंगा मैं तुम लोग का. समझा? मुंडी घुमा ऐसा ऐसा. 692 in 2 years and 800 in 5 years. 692 becomes 692 in 2 years and 800 in 5 years. What is principal? What is principal? Vijaga, this is reminiscent of your problem, the one that you got. Yes, sir. I expect the answer from you now. If you said you can do the simultaneous equation, now prove it to me. तू चुप रहे. मैं तेरे को सीधा दाऊद के पास भेज दूंगा. तेरा हेयर स्टाइल और मेरा हेयर स्टाइल सेम करवा दूंगा. मुझ भी. हाँ. तुम लोग ने वीरप्पन का शो देखा क्या नेटफ्लिक्स पे? एनीवन सॉ दैट डॉक्यूमेंट्री वीरप्पन वाला? किसी ने देखा? देखो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो. एक दिन वो वीरप्पन की डॉक्यूमेंट्री देख लो. कल छुट्टी लो, क्लासेस बंक करो, वीरप्पन की डॉक्यूमेंट्री देखो. मेरा नेटफ्लिक्स यूजर आईडी और पासवर्ड अरुल कॉन्डर के पास मिल जाएगा. अरुल देखा तूने? नहीं सर नहीं देखा. अरुल इज रिलेटेड टू वीरप्पन. ये पता है किसी को? नहीं, नॉट रिलेटेड. फ्रॉम द सेम, they are from the same region, same
ethnic diversity is the same. Ethnicity, I beg your pardon, is the same. Chalo guys, a certain sum becomes 692. So A is equal to P into bracket 1 plus NR upon 100. So what is A? A is 692. It is equal to P into bracket 1 plus N is equal to 2 into R upon 100. So now what is your answer? Now it will be 692 is equal to P into bracket 1 plus 2R upon 100. So 100 प्लस 2R आना चाहिए. तो क्या आएगा बेटा इधर आएगा P इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 2R अपॉन 100. ये P इधर आया, बराबर है. तो अभी बेसिकली ये 100 आप उधर लेके जा सकते हो, बट पहले ब्रैकेट खोलो. तो 692 इज इक्वल टू 100P प्लस 2PR अपॉन 100. अब 100 को वहां ले जाओ. So 100P plus 2PR is equal to how much? 100P plus 2PR is equal to 692,000. बराबर है. ये तुम्हारा इक्वेशन 1 बन गया. इन द सेम फ्लेवर, इन द सेम लाइट अभी आपका इक्वेशन नंबर 2 बनाया जाएगा. आपका इक्वेशन नंबर 2 है A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस NR अपॉन 100. A इज इक्वल टू हाउ मच? 800 इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 5 years मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन 100. अभी यहाँ पे मैं पूरा ऐसे नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं 800 इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 5R अपॉन 100. So 800 is equal to 100P plus 5PR upon 100. So 80,000 is equal to 100P plus 5PR. ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया. आपको एलिमिनेट करना है एक को और लेना है दूसरे को. अब आपका माइंड यूज कीजिए, इन दोनों के रिश्ते में कौन ज्यादा बड़ा है दिखने में? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा बड़ा है. तो पहला उसको लिखिए. 80,000 इज इक्वल टू 100P प्लस 5PR माइनस 69,200 इज इक्वल टू 100P प्लस कितना है ये? 2PR है. तो ये क्या बन जाएगा? ये 3PR बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा. 80,000 माइनस 69,200 इज 10,800. अभी इज इक्वल टू 3PR. 10,800 डिवाइडेड बाय 3, 3600 इज इक्वल टू PR. 3600 इज इक्वल टू PR. अब इसके आगे आप क्या करेंगे ये जानने में मुझे इंटरेस्ट है. मुझे दिलचस्पी ये जानने में है कि आगे का कैलकुलेशन क्या होगा. और आगे का कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, एकदम चाइल्डिश है. इसको लो और इसमें घुसेड़ दो. तो 80,000 इज इक्वल टू 100P प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3,600. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3,600 कितना है? 18,000. तो 100P प्लस 18,000 इज इक्वल टू 80,000. तो 18 को उधर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा? 62,000 इज इक्वल टू 100P. तो P कितना आएगा तुम्हारा? 62,000 डिवाइडेड बाय 100. P कितना है तुम्हारा? 620. यदि P 620 रहा, यदि P 620 रहा और PR जो है यह 3,600 है, तो 620 इंटू R इज इक्वल टू 3,600. तो R इज इक्वल टू 3,600 डिवाइडेड बाय 620. 3,600 डिवाइडेड बाय 620, जिसका आपका जवाब कितना आता है? 5.806%. और ये क्वेश्चन है आपके जून 2019 अटेम्प्ट का. उसमें यह नहीं पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें यह पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना है. और इस सवाल के आपके ऑल्टरनेटिव्स है 520, 620, 720 और 820. तो आप क्या करेंगे? 620 को सिलेक्ट करेंगे. और यहाँ पे ऐसा लग रहा है सबको 620 और 5.86 आया है.
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसको किसको आया है मुझे जानने में दिलचस्पी है, जरा देखने दीजिए। किसको किसको आया है, एक मिनट। चार करण, ओके। टू आदित्य, टू आदित्य, 7 पीयूष, विश्वा, देवराज, कोमल। 3 नंबर कौन है, मैं भूल गया। उसने भी किया है, गुड। 620 सर साक्षी। मैं हाँ? वखरिया वखरिया अरे ऋषि, सॉरी, तेरे को कैसे भूल सकता हूँ, सॉरी। 16 विशाखा, 620। विश्वा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया। 9 नंबर कौन है, 9 नंबर सर जेसन जेसन, वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया आपने, शाबाश। 20 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4 करण रेट ऑफ इंटरेस्ट। 11 अनुराग, 620, शाबाश। मनाली शिंदे ने मेरे को ऐसा लिखा है, बस मेरे को क्या भाई, आया कि नहीं। और 17 नंबर जयेंद्र, उसने ऐसा थम्स अप दिया है, आई एम अज्यूमिंग कि उसको आया होगा, आई एम अज्यूमिंग कि इसको आया होगा। अरे बात समझ में, राइट? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड सर। राइट, राइट। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी, ले लीजिए अनुराग, अनुराग मैं ले लिया हूँ। ले लिए, शाबाश। तो हम है 2019 के अटेम्प्ट में, हमें 2019 के अटेम्प्ट में। अब आगे चलते हैं। अब ये भी आपको, आपसे ही करवाऊंगा, आप ध्यान देंगे। सो ऑल डाउट्स दैट हैव बीन आस्क्ड टू मी हैव बीन क्लियर्ड, ऑल डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। Yes, मनाली, विशाखा, और कोई होगा जिसको डाउट्स है तो, और विश्वा, इन 3 स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे थे, और कोई है जिसे डाउट्स है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अब मैं जून 2019 में ही कंटिन्यूएशन में हूं, तो जरा देखिए। अ सम ऑफ मनी amounts to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years as per simple interest. As per simple interest. What is the principle? I am not interested in principle. I want rate also. Is this similar to your question right now? Is this similar to your question right now? Yes. I want you to solve it. Hey, 1 second. Is it the same institute question? Vishaka, check. Yes, yes, this is the one. Same institute question, na? Yes. No need to solve. No need to solve. We have done this. Next. This is a really interesting question. Huh? I want to see who is able to solve this. A sum is invested at the rate of 9% in year 1, comma 6% in year 2, comma 3% in year 3, full stop. It is compounded. It is compound interest. The amount received is equal to 550 after 3 years. Find principal. Very interesting question. कहीं ना कहीं हटके एक सवाल पूछा गया है, बेहद अच्छा। तो जरा ध्यान देंगे और सबका फोकस इस पे होगा। देखिए, आपके पास पहले तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के
आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट. So principal plus what is compound interest? P into bracket 1 plus R raised to n minus 1. Agreed or disagreed? In compound interest amount क्या है? Compound interest का amount क्या? Principal plus interest ना? Yes or no? अरे भाई yes or no? Yes. Yes, sir. बराबर. सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्लियर होना चाहिए? करेक्ट. अब फोकस, सबका ध्यान यहां है. 550 मिला. मुझे नहीं पता मैंने कितना इन्वेस्ट किया. मैंने इसको इन्वेस्ट किया 9% के लिए, 9% के लिए 1 साल के लिए. ये जो भी मिला, ये जो भी मिला, इसको इन्वेस्ट किया मैंने, इसको इन्वेस्ट किया मैंने 6% के लिए दूसरे साल में, 2 साल के लिए नहीं, दूसरे साल में. और ये जो भी मिला, और ये जो भी मिला, इसको मैंने इन्वेस्ट किया, इसको मैंने इन्वेस्ट किया 3% के लिए तीसरे साल में. तो मेरा जवाब क्या आएगा? मेरा जवाब क्या आएगा? इट इज 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 1.03. तो इसका मुझे आंसर कहीं ना कहीं आता है P मल्टीप्लाई बाय 1.190062. ये बन गया 550. अब P की वैल्यू है 550 डिवाइडेड बाय 1.190062 डिवाइडेड बाय दिस. इसका आंसर है 462.16079. 462.16079. That's the answer. Right, guys? Are you with me on this? Are you with me on this? और Yes, sir. ये है आपका सवाल 2019 जून का. ये है आपका सवाल 2019 जून का. मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आश्वासन दिलाना चाहता हूं. आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास स्कैनर है, कोई स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास स्कैनर नहीं है. जिनके पास नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है. आपको स्कैनर मैं यहाँ पे करवा दूंगा. कोई भी क्लासेस में पूरा स्कैनर करवाते नहीं है, आधा अधूरा करा के भगा देते. मैं पूरा स्कैनर कराऊंगा, स्कैनर जैसे क्वेश्चंस, पर उससे टफ में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछूंगा मेरे टेस्ट में. तो आपके पूरे आईसीएआई के सवाल अच्छे से होंगे. जाके स्कैनर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है. ऐसा मान के चलिए कि आपको आपके इस एपेक्स के कोर्स में स्कैनर भी फ्री मिल रहा है. आई बात समझ में? आप मेरे पास आए हो, मेहनत करने का मौका मुझे दीजिए. मैं बैठ के गूगल लेंस पे या कहीं टाइप करके या ऐसे लिख के ऐसे तरीके से स्कैनर आप तक पहुंचाऊंगा. तो खर्चा करने की जरूरत नहीं है. माता पिता का पैसा स्पेंड फालतू में नहीं करना है. आई बात समझ में? आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी मार्क कीजिए. इंपॉर्टेंट कैटेगरी के सवाल टेस्ट में जरूर आएंगे. Done, sir. एक सेकंड. अब हम जा रहे हैं नवंबर 2019.
एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए 10% पे लगा दिए और कुछ पैसा 20% पर लगा दिया। दोनों मिलकर के उसका रिटर्न आया 14% पर एनम। उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए? उसने क्या किया? उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सवाल क्या है? उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब उसने कितना इन्वेस्ट किया यह तो मैं नहीं जानता, उसने कितना इन्वेस्ट किया यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता यह हूं कि उसने 12,000 इन्वेस्ट किया 10% के लिए 1 साल। इतना उसने इन्वेस्ट किया, बराबर है, इतना उसने इन्वेस्ट किया। अब दूसरा जो उसने इन्वेस्ट किया, अनदर सम ऑफ मनी, मेरे पास इस अनदर सम ऑफ मनी को एक्स लेने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, और यह मुझे 20% का रिटर्न देता है 1 बरस के लिए। अब ऐसा हो रहा है कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट, अब ऐसा हो रहा है इस क्वेश्चन में मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है 12,000 प्लस यह एक्स, प्लस यह एक्स मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है। आई बात समझ में? बारह हजार प्लस यह एक्स, इस पे मैंने कमाए 14% 1 बरस के लिए। ये मेरा इक्वेशन बन गया। तो 12,000 का 10% यह बन गया 1200, एक्स का 20% यह बन गया 0.20x। अब यहां पे नजर मारिए और इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए। सर पर स्कैनर को गोली मारिए, मैं जो कह रहा हूं उसको बात मानिए। अब कीजिए 1200 का 14%, आपका जवाब आएगा 168। आपका जवाब आएगा 168। आपका जवाब है 168 प्लस 0.14x, 1200 प्लस 0.20x इज इक्वल टू दिस मच। अब इस 168, अब अपने माइंड को केयरफुली, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो 1200 इंटू 0.14 कितना है? ये 168 आया है। अब लोचा है, अब लोचा है। लोचा क्या है? लोचा ये है, लोचा ये है कि एक जगह पे माइनस आने वाला है, एक जगह पे प्लस आने वाला है। इस बात को समझो, इस बात को समझो। देखिए ये 1200 है, ये कितना है? ये 1200 है। आप समझ रहे हो? ये कितना है? ये 1200 है। ये कितना है? 0.20x है। ये कितना है? ये कितना है? 12,000x। कितना है? 12,000x। तो 12,000 इंटू 0.14, इधर लिखने में गलती, ये लोचा सॉल्व हो गया। ये क्या हो गया? ये लोचा जो है सॉल्व हो गया। अब इस 14 को वहां ले जाओ और इस 12 को यहां ले आओ, तो 0.20 माइनस 0.14 क्या है आपका? 0.06 x इज इक्वल टू 1680 माइनस 1200। ये कितना है? ये है 480। तो x क्या आया? 480 डिवाइडेड बाय 0.06, तो डिवाइडेड बाय 0.06 क्या है आपका आंसर? 8,000। पहले आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 12,000 प्लस एक्स, और एक्स कितना है? यह 8,000। ये कितना है? यह 20,000। ये कितना है? यह 20,000 है। आई बात समझ में सबको? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें एक्चुअली मेरा फोन बहुत जोर से वाइब्रेट हुआ यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो गया। मैं फिर से कर लूँ एक बार, मैं फिर से करूँ एक बार। मुझे इस इक्वेशन को आप तक फिर से ले आना है, जरा ध्यान दीजिए।
चलो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। A man invests 12,000 at the rate of 10% and another sum of money. Another sum of money कितना है? ये मैं X लूंगा at 20% for 1 year. In all he gets 14% per annum on his investment in simple interest. Simple interest पे 14% वो earn करता है. What was the sum he invested? Total उसने कितना इन्वेस्ट किया? सिंपल इंटरेस्ट पे PNR अपॉन 100. प्रिंसिपल कितना था? 12,000. इस पे उसने कमाए 10% फॉर 1 ईयर. ये पहला हुआ. दूसरा सम उसने इन्वेस्ट किया X, जिसपे उसने कमाए 20% 1 साल के लिए. यह दूसरा हुआ. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? पहला सम 12,000, दूसरा सम X, तो 12,000 प्लस X यह दूसरी हो गई. इस पे इसने कमाए टोटल 14%. टोटल कितना कमाया? 14% फॉर 1 ईयर. आई बात समझ में? ये कितना हो गया? ये 1200 है. ये कितना हो गया? ये 0.20x है. ये अब क्या होगा? इसको ऐसे लिखिएगा. ये समझ में आ रहा है सबके? 14 by 100 को मैंने 0.14 कर दिए थे. अब 12,000 के 14% में लूंगा. यह आंसर आता है 1680 प्लस 0.14x इज इक्वल टू व्हाट? देयरफॉर, इधर देयरफॉर आना चाहिए. देयरफॉर 1200 प्लस 0.20x इज इक्वल टू 1680. तो ये 14 को यहां ले आओ, ये बन जाएगा 0.06x, और ये 1200 को वहां ले जाओ, ये बन जाएगा 480. तो 480 बटा 0.06, 1680 माइनस 1200, 480 डिवाइडेड बाय 0.06. x की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000 रुपया x की वैल्यू आ गई. तो 12,000 तो आपने पहले इन्वेस्ट किए थे, वो बोलते ही है, पर x पता नहीं था, तो वो हो गया 12,000. 8,000, आई एम सॉरी. तो आपकी टोटल कितनी है भैया? 20,000. कितनी है टोटल? 20,000. आइए बात समझ में? दैट इज वाई दिस इज देयर. ये मैं इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा. टेस्ट में ऐसे सवाल आने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे ही पूछे जाएंगे. क्यों? क्योंकि देखिए ये आपके अटेम्प्ट के काफी करीब है. ये 2019 के अटेम्प्ट का सवाल है, आपका अटेम्प्ट 24 में. तो लास्ट 5 इयर्स तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट माना जाता है विदाउट एनी डाउट्स. तो ये सर्टनली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सर्टनली एक इंपॉर्टेंट. यस सर, वहां पर ने सेकंड इक्वेशन में 12,000 प्लस x क्यों लिया? क्योंकि आपने 12,000 इन्वेस्ट किया 10% पे, और अनदर सम ऑफ मनी आपने इन्वेस्ट किया. अनदर सम ऑफ मनी कितना है? x. अनदर सम पे कितना मिला? 20%. इसके लिए ये आपका अनदर सम ऑफ मनी है. तो टोटल इन्वेस्टमेंट राजा कितनी है? ये 12,000 और ये x. तो टोटल क्या है? 12,000 प्लस x. आई बात समझ में? हाँ. आई बात समझ में? हाँ. पक्का? यस सर. एक मिनट. आदर्श का मैसेज आया है. आदर्श ने पूरा स्कैनर ही भेज दिया, PDF. चलो आदर्श ये ग्रुप पे भेज दो PDF. ग्रुप पे भेज दो ये PDF. जिसको भी चाहिए होगा यूज कर लेगा. जिसको भी चाहिए होगा यूज कर लेगा. खरीदने की जरूरत नहीं है फिर. चलिए, नवंबर 2019 का ये सवाल, अच्छा सवाल. अब आगे अब आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. नवंबर 2019. The difference between, or rather the difference in simple interest of a sum invested of rupees 1,500 for 3 years
is 18, comma. What is the difference in rates? सबसे पहले समझे the difference in simple interest of a sum invested of rupees 1500. ये क्या है? ये प्रिंसिपल है. ये क्या है? ये n है. ये सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 यह है. आपको ढूंढने रेट्स. तो पहले वाला जो है सिंपल इंटरेस्ट 1, पहले वाला जो है सिंपल इंटरेस्ट 1, यह है 1500 इंटू 3 इंटू R अपॉन 100. आई बात समझ में? और दूसरा जो है सिंपल इंटरेस्ट यह है 1500 इंटू 3 इंटू R2 अपॉन 100. अब 1500 इंटू 3 इंटू R अपॉन 100 माइनस 1500 इंटू 3 इंटू R2 अपॉन 100, यह इक्वल टू 18. अब ढूंढिए व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेट्स. आपको पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन द रेट्स क्या है. आपको पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द रेट्स क्या है. तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे दिखता है द फॉलोइंग. देखिए ध्यान से, 1500 इंटू 3 अपॉन 100, तो मैं कहूं 45 R1 माइनस, यहाँ पे मैं कहूं 45 R2, करेक्ट, इज इक्वल टू 18. So can I say 45 into R1 minus R2 is equal to 18, correct? Can I say R1 minus R2 is equal to 18 divided by 45? इसका आंसर क्या आया? 0.4. What is the difference in the rates? Your options are 0.4, 0.6, 0.8, 0.1. Difference in the rates is 0.4. What is your answer? Option number A. इसे भी मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी डेजिग्नेट करूंगा. क्यों? ये कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट में तो आसान है, और अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछ लिया जाए तो ये इक्वेशन ही आपको बड़े दिक्कत में डाल देगा. इसका मैं गारंटी आपको देता हूँ. बराबर. तो एक बिंदु कर भी कर सकते हैं, सिर्फ एक ही डिफरेंस नहीं निकाले जाता कि R1 में इसी हो जाएगा. फिर तो 1500 into 3 divided by 0.4, तो R2 करना ही पड़ेगा. फिर से बोलो. 1500 हाँ. 3 divided by 100, हाँ. ये आ गया 45. 45. Divide is equal to 18. डिवाइड इज इक्वल टू क्यों? भाई 18 divided by 45, क्योंकि अगर इस तरफ लेके जाए तो कैलकुलेट भी करो. हाँ, 0.4 वैसे करेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं, बट दिस इज इजियर फॉर द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड ना. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अब 1, 2, 3 आने वाले क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं. आने वाले 3 सवाल ध्यान देंगे इस पे. सबसे पहला, द प्रेजेंट population is 25,000. Full stop. The population increases at the rate of 3% in year 1, at the rate of 4% in year 2, and at the rate of 5% in year, at the rate of 4%, 3% in year 1, 4% in year 2, and 5% in year 3, full stop. What is the population at the end of year 3? देखिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जिस तरीके से पूछा गया है ये तकलीफ देगा. तो सबसे पहले देखिए, आज पॉपुलेशन 25,000 है,
ये ग्रो कितने पे हुआ? ये ग्रो हुआ 3% पे 1 साल के लिए। फिर ये पूरा ग्रो हुआ 4% के लिए, फिर से 1 साल के लिए। और यह पूरा ग्रो हुआ 5% के लिए तीसरे साल में। तो बेसिकली आपको करना क्या है, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.03 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 और आपका जवाब आएगा 28,119। और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। आर यू विथ मी एवरीबॉडी? डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस गाइस? हाँ सर ले लिया। Very good. Next two questions are for you. Next question. These two questions are for you. These two questions are for you. They are not exactly of the attempt. I've changed the numbers. I've changed the numbers, but they are all related to November 2019 attempt, that is for sure. They are all related to November 2019 attempt, that is for sure. So, are we getting calculations done for this? Are we getting calculations done for this? Are we getting calculations done for this? So 15% per annum when the interest is payable monthly. So first of all, do a very simple calculation. This is 0.15 divided by 12. What is the answer? 0.0125. Don't write percentage. 0.0125. So now effective rate of interest is 1 plus 0.0125 raised to. Now you don't have an option. It's monthly minus 1. What will you get? Your answer will be 16.07545% per annum. Correct? Everybody got this? 16.07. Very good. Now EIR when 10,000 invested at 5% compounded quarterly. So first do this. 0.05 divided by 4 is equal to 0.0125. 0.0125. Now having said this, first you find out effective rate of interest. 1 plus 0.0125 quarterly minus 1. Minus 1. So what is the answer? The answer is 5.0945% per annum.
Now calculate what happens to this. Interest they want ना. अरे I will not do a difficult calculation at all. अगर मुझे सीधा रेट मिला है तो मैं सीधा 5.0945 क्या है ये 10,000 इंटू 0.05 0945 ये करूंगा और मुझे आएगा 509.45. मुझे कितना आएगा 509.45. What will I get? I'll get 509.45. Are you with me on that? Are you with me on that? This is percentage. Are we clear about this, guys? Everybody have got the answer? Very good. Yes. Screenshots taken? Yes. Taken.